Welcome to this lecture on atoms. Today we will discuss the Rydberg'S formula for hydrogen spectrum, or we will derive some expressions for the frequency of emitted radiation, for the frequency of the emitted radiation, for the wavelength of the emitted radiation, for wave number. We will derive these formulas in case of hydrogen atom. In case of hydrogen atom, we discussed about the radius of the electron, radius of the orbit of electron in a hydrogen atom, radius of orbit of electron in the nth orbit. Then we derive the expression for the speed of electron in the nth orbit. Then we derive the expression for the energy of electron in the nth orbit. Now, today we will first derive the expression for the frequency of the emitted radiation when the electron jumps from higher energy orbit to lower energy orbit. You have this formula in your mind which we derived yesterday. The formula was energy of electron in the nth orbit. This was minus 2 pi square m k square e raised to power 4 divided by h square into 1 by n square. This was for hydrogen atom. For other atoms we can have Z square here. For hydrogen Z was equal to 1. Now I will use this formula for deriving the expression for the frequency of the emitted radiation. For example, you have an electron. This electron is present in this orbit. This is n is equal to 2 orbit, n is equal to 3 orbit. This is n is equal to 3 orbit. I can say n is equal to 2 orbit, and this is equal to n is equal to 1 orbit. N is equal to 2 orbit, n is equal to n2 orbit, and this is n is equal to n1 orbit. Okay, ये ऑर्बिट है, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n2 है, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? n1. इसमें इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी होगी. सबसे मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को होती है when the electron is in the innermost orbit. ठीक है ना? Now, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप करता है from one orbit to another orbit, the difference of energies in the two orbits is emitted in the form of EM radiation, or we can say in the form of photons. आपने पढ़ा कि when an electron jumps from higher energy state to lower energy state, or we can say higher energy orbit to lower energy orbit, the difference of energies in the two orbits is emitted in the form of photons, in the form of EM radiations. ठीक है ना? Suppose ये ऑर्बिट जो है इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E2 है, ये ऑर्बिट जो है इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? E1. In this orbit the electron energy is E2, and in this orbit the electron energy is E1. Now, when the electron jumps from this orbit to this orbit, what happens? The difference of energy, that is E2 minus E1, because in this orbit electron has larger energy, in this orbit electron has lesser energy. Therefore, in order to stay in this orbit, what happens? The difference of energies between the two orbits, that is emitted in the form of a photon. We can say gamma ray photon, and the energy of that photon is equal to what? H nu, and this H nu will be equal to E2 minus E1. This was called Bohr's frequency condition. As per Bohr's frequency condition, when an electron jumps from higher energy orbit to lower energy orbit, the energy H nu of the emitted photon is given by H nu is equal to E2 minus E1. जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, जो दो ऑर्बिट्स के दरमियान डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा E2 माइनस E1, वो होता है बराबर एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटोन. चूंकि वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, जो इस फोटोन का एनर्जी H nu होगा वो होगा E2 माइनस E1. दिस इज Bohr's what condition? Frequency condition. Why? What is E2? E2 is energy of electron. E2 is energy of electron in an orbit having principal quantum number n2. In an orbit having principal quantum number n2. E2 जो है वो है
एनर्जी इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट में जिस ऑर्बिट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, n2, ठीक है ना। और E1 क्या है, शाबाश, E1 इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n1। जो E2 है, E2 इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in an orbit having principal quantum number n2, and E1 is energy of electron in an orbit having principal quantum number n1. We know that energy of the electron in the nth orbit is given by किसके बराबर है, शाबाश, E is equal to -2 pi square m k square e raised to power 4 divided by h square into 1 by n square. See, this is energy of electron in what orbit? Nth orbit. Now, in place of n, I will take 2. When I will take 2, so here in place of n, I will write what? N2. Therefore, E2 will be equal to -2 pi square m k square e raised to power 4 divided by h square into 1 by n2 square. ठीक है ना। E1 लिखो, E1 किसके बराबर आएगा, शाबाश, -2 pi square m k square e raised to power 4 divided by h square into 1 by n1 square, ठीक है। यहाँ n2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और यहाँ n1 है। अब इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। Put these values in equation number first. What we get, what the equation first will become? It will become h nu is equal to E2 का वैल्यू दे दो, क्या है बेटा, -2 pi square m k square e raised to power 4 divided by h square into 1 by n1 n2 square, ठीक है ना, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस होगा प्लस, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या बनेगा फिर प्लस। देखो E1 यहाँ माइनस है, यहाँ अपना माइनस है, माइनस माइनस बनेगा प्लस। दिस इज प्लस ट्वाइस पाई स्क्वायर m k square e raised to power 4 divided by h square into 1 by n1 square, ठीक है बच्चा, ठीक है बेटा। दोनों को क्या कॉमन आएगा, शाबाश, दोनों को क्या कॉमन आएगा, बता फटाफट। दोनों में से हम क्या कॉमन निकालेंगे, शाबाश, हम कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकलेगा, 2 pi square m k square e raised to power 4 divided by h square। इसको कॉमन ले लो, तो जब आप कॉमन लेंगे तो आपका h न्यू निकलेगा बराबर 2 pi स्क्वायर कॉमन लिया, m कॉमन लिया, k स्क्वायर कॉमन लिया, e raised to power 4 कॉमन लिया, h स्क्वायर कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में रहेगा माइनस टाइम्स 1 by n2 स्क्वायर, शाबाश, प्लस 1 by n1 स्क्वायर, क्योंकि दूसरी टर्म पॉजिटिव है, पहली टर्म नेगेटिव है, ठीक है ना। इसको इधर ले लो, ये बनेगा न्यू इज h न्यू इज इक्वल टू 2 pi स्क्वायर m k स्क्वायर e raised to power 4 divided by h square into, इसको इस साइड में लिखो, this is 1 by n1 square minus 1 by n2 square, ठीक है। This is h nu is equal to 2 pi square m k square e raised to power 4 divided by h square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square, ठीक है बेटा। अब न्यू निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, न्यू होगा बराबर, ये h जो है h नीचे जाएगा, h स्क्वायर इंटू h किसके बराबर बनेगा, h क्यूब, ठीक है ना। तो ये बनेगा 2 pi स्क्वायर m k स्क्वायर e raised to power 4 divided by h क्यूब into n1 स्क्वायर minus n2 स्क्वायर, 1 by n1 स्क्वायर minus 1 by n2 स्क्वायर। Let me call this equation number 7. ये है, this is the expression for the frequency of the photon which is emitted when the electron jumps from higher energy orbit to lower energy orbit. कभी कभी इम्तिहान में यही पूछा जाएगा सीधे, वो तो उस वक्त रैडबर्ग्स फार्मूला नहीं पूछेगा, वो सीधे यहाँ तक पूछेगा, वो पूछेगा obtain the expression for the frequency of the electron when it jumps from higher energy orbit to lower, तो उस वक्त आपको यही स्टॉप करना है। This is the expression for the frequency of the electron when it jumps, for the frequency of the emitted photon, not electron, photon which is emitted when an electron jumps from higher energy orbit to lower energy orbit. अब हम आगे जाएंगे, we will move ahead. See, in your class 12th, in your class 11th waves, आपने पढ़ा है वहां पर जो स्पीड ऑफ वेव होती है वो होती है बराबर फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ,
स्पीड ऑफ वेव होती है बराबर v होती है बराबर फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फोटोन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है ना, एंड दीज फोटॉन्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। सो इंस्टेड ऑफ v वी हैव c is equal to nu lambda. We know that the frequency nu of the photon, we know that the speed of photon is given by product of frequency of photon and wavelength of photon. क्योंकि हमें पता है wave velocity होती है बराबर frequency into wavelength। क्योंकि photon जो है वो travel करता है with the speed of light. So for photon we have c is equal to nu lambda, ठीक है ना। तो nu का वैल्यू निकालो यहां पर, c होता है बराबर nu lambda। nu किसके बराबर बनेगा शाबाश? nu बनेगा बराबर c by lambda। nu बनेगा बराबर c by lambda। nu बनेगा बराबर किसके बराबर? c by lambda। तो nu का वैल्यू उठाओ और फोर्थ पे लगाओ, हमें एक्सप्रेशन निकलेगा फॉर वेवलेंथ, आप लिखो बट c is now c is equal to nu lambda। तो nu किसके बराबर है? c by mu नहीं कहते इसको, nu कहते हैं इसको, nu is equal to what? c by lambda। Put value of nu in equation number second. What we get शाबाश, we get nu के बदले क्या लिखोगे आप शाबाश? nu के बदले लिखोगे आप c by lambda is equal to 2 pi square m k square e raised to power 4 divided by h cube into शाबाश 1 by n1 square minus 1 by n2 square, शाबाश। अब ये c जो मेरा है, इस c को मैं डिनोमिनेटर में लूंगा, ठीक है। बोलो क्या बनेगा यहां पर? c को ले लो डिनोमिनेटर में, तो आपको बनेगा 1 by lambda शाबाश इज इक्वल टू शाबाश क्या बनेगा? 2 pi square m k square e raised to power 4 divided by ch cube into शाबाश 1 by n1 square minus 1 by n2 square, तो आपको निकला 1 by lambda is equal to 2 pi square m k square e raised to power 4 divided by ch cube into 1 by n1 square minus 1 by n2 square। ये जो है this is the expression for the wavelength of the emitted photon. When the electron jumps from one higher orbit to higher energy orbit to lower energy orbit, the photon which is emitted, the wavelength of that photon is given by 1 by lambda is equal to 2 pi square m k square e raised to power 4 ch cube into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. I will write this equation in this way. 1 by lambda is equal to r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square। मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 by lambda is equal to r 1 by n1 square minus 1 by n2 square। नजर रखो 2 जो है कांस्टेंट, pi है कांस्टेंट, m है कांस्टेंट, k है कांस्टेंट, e है कांस्टेंट, c है कांस्टेंट, h है कांस्टेंट, यानी ये सारा जो चीज है यहाँ पर ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को मैंने किससे डिनोट किया? r से। वायर आपका r जो है, आपका r है 2 pi square शाबाश m k square e raised to power 4 divided by ch cube। इस कांस्टेंट को कहते हैं Rydberg'S constant। What is this constant called as? Rydberg'S constant। This constant is called Rydberg'S constant। What is this constant called? Rydberg'S constant। इसका वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे, देखो इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? पाई का वैल्यू दोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दोगे, के का वैल्यू दोगे, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दोगे, सी का वैल्यू दोगे, एच क्यूब का वैल्यू दोगे, तो इसका वैल्यू जो है दैट कम्स अप टू बी 1.097 into 10 raised to power 7 meter inverse, meter raised to power -1। अगर इस Rydberg's फार्मूला की डायमेंशनल फार्मूला आप निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू m raised to power -1। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द लेंथ, ठीक है ना। सो दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड Rydberg's कांस्टेंट। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में बोला जाता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Rydberg's कांस्टेंट। उस वक्त आप क्या करोगे? आर Rydberg's फार्मूला जो आप Rydberg's कांस्टेंट है, इसका जो ये फार्मूला ये वैल्यू है, ये आपको ज़बानी याद रखना है, तो वैल्यू देना है उन सब के, तो यू कैन रीच आउट एट दैट वैल्यू।
वहां आप डायरेक्ट पहले ये फार्मूला लगाओगे, ठीक है ना, उसके बाद इनके वैल्यू दोगे डिफरेंट क्वांटिटीज के, तो उसके बाद लास्ट में वहां लिख सकते हो 1.097 into 10 raised to power minus 7 meter raised to power minus 1. So this equation is used for calculating the wavelength of the photon emitted when the electron jumps from higher energy orbit to, but this 1 by lambda, that is reciprocal of wavelength, this is called wave number. What is this called as? This is called as wave number. This is called as wave number. वेव नंबर, ठीक है ना, बट रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इसको हम क्या कहते हैं? वेव नंबर. तो इक्वेशन क्या बनेगी? अब वो इक्वेशन 1 by lambda के बराबर बदले में लिखूंगा वेव नंबर म्यू v डैश इज इक्वल टू शाबाश r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. This formula is called Rydberg'S formula for hydrogen spectrum. Because why this is called Rydberg'S formula for hydrogen spectrum? Because with this formula we can explain hydrogen spectrum. We can explain the various types of spectral series obtained in the hydrogen spectrum. So this formula, it is the origin. It is the origin of what? It is the origin of hydrogen spectrum. ठीक है ना? With this formula we can explain the hydrogen spectrum. Hydrogen spectrum. ठीक है ना? This formula is called Rydberg'S formula for hydrogen spectrum, or it represents the expression for the wave number. ठीक है ना? This completes this question. We will discuss hydrogen spectrum. You would have read in last class, in your class 11th chemistry. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हम आज थोड़ा सा इसको फिर से डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को. देखो जी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? पहले हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है. देखो यहां पर फॉर एग्जांपल, बाद में मैं बोलूंगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है. पहले हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम क्या है. सपोज बच्चों, ये मुझे मेरे पास एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो है n = 1. यहां पर मुझे दूसरा ऑर्बिट है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2, तो इसके लिए n = 2 है. यहां पर मुझे तीसरा ऑर्बिट है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n3, ठीक है ना. यहां पर मुझे चौथा ऑर्बिट है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n4. देखो, सपोज इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है E1, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है E2, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है E3, इसमें E3 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? E4. E1, E2, E3, E4. देखो बच्चों, सपोज ये ऑर्बिट, एक इलेक्ट्रॉन पहले आ रहा है, ऑर्बिट नंबर 2 से वो ऑर्बिट नंबर 1 में जंप कर रहा है. इट इज जंपिंग फ्रॉम ऑर्बिट नंबर 2 टू ऑर्बिट नंबर 1. अब जो इसने यहां पर जो उसने फोटोन इमिट किया, उस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी निव होगी वो होगी E2 minus E1 divided by H. ठीक है, ये जो फोटोन इसने इमिट किया, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी ये, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगी 1 by lambda E2 minus E1 divided by CH, या इसकी वेवलेंथ लैम्डा होगी CH divided by E2 minus E1, अगर रेसिप्रोकल करेंगे. सपोज अब ये फोटोन थर्ड से फर्स्ट में आ गया, ठीक है ना. जब ये थर्ड से फर्स्ट में आ गया, थर्ड से फर्स्ट, अब जो फ्रीक्वेंसी इसने इमिट की, जो इसने फोटोन इमिट किया, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू होगी, क्या होगी शाबाश? दैट विल बी E3 minus E1 divided by H, या उसका वेवलेंथ लैम्डा जो होगा वो होगा CH divided by E3 minus E1, ठीक है. वो है ये इस फोटोन, दूसरे फोटोन का. इसके बाद सपोज ने जंप किया फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट. जो फोटोन इसने इमिट किया, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी E3 E4 minus E1 divided by H, वेवलेंथ होगी CH divided by E4 minus E1. यानी इस फोटोन की एक फ्रीक्वेंसी है, इसकी दूसरी फ्रीक्वेंसी है, इसकी तीसरी फ्रीक्वेंसी है. इस फोटोन की एक वेवलेंथ है, इसकी दूसरी है, इसकी दूसरी है. These photons have different wavelengths here and different frequencies here. अगर मैं अब इन फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी, इन फोटॉन्स का वेवलेंथ, उसको ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में लिखूंगा,
उनको अरेंज करूंगा मैं इन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट. Let me arrange them either in the increasing order of the frequency or decreasing order of their wavelengths. That ordered arrangement of frequencies or wavelengths of photon, that is called as a spectrum. What is a spectrum? Spectrum is the ordered arrangement of wavelengths or frequencies. ठीक है ना? Obtained when the electron jumps from higher energy orbit to lower energy orbit. तो ये जो spectrum है, इसमें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है या ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ व्हाट वेवलेंथ्स होता है. या हम इसको क्या करेंगे, वी विल अरेंज दीज फोटॉन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज और डिक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ्स. देन दैट थिंग इज कॉल्ड एज व्हाट, स्पेक्ट्रम. नाउ हियर वी हैव अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? अभी आपने देखा, अभी इलेक्ट्रॉनिक जंप्स एंड होते थे फर्स्ट ऑर्बिट में, तो हमें एक सीरीज निकली, एक स्पेक्ट्रल सीरीज निकली. अगर इलेक्ट्रॉनिक जंप्स जो है वो किस ऑर्बिट में एंड होंगे? सेकंड ऑर्बिट में, फ्रॉम हायर ऑर्बिट्स, तो दूसरी सीरीज निकलेगी. अगर इलेक्ट्रॉनिक जंप्स थर्ड ऑर्बिट में एंड हो गए तो तीसरी सीरीज निकलेगी. ठीक है ना? द ग्रुप ऑफ दीज स्पेक्ट्रल सीरीज obtained when an electron jumps when an electron jumps to inner orbits from any higher energy orbits. एक मिनट, ये हम कैसे हासिल कर सकते हैं? ठीक है ना? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, हमारे पास एक सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं. ठीक है ना? जो हम हासिल करते हैं when the electron jumps from higher energy orbits to a particular lower energy orbit. The series of spectral lines obtained when the electrons in a hydrogen atom, या when an electron in a hydrogen atom jumps from higher energy orbit to a particular lower energy orbit. जब पहले ऑर्बिट में होगा तो एक सीरीज, जब इलेक्ट्रॉनिक जंप्स पहले ऑर्बिट में एंड होंगे तो एक सीरीज निकलेगी. जब दूसरे ऑर्बिट में एंड होगी तो दूसरी सीरीज निकलेगी. जब तीसरे ऑर्बिट में एंड होंगे तो तीसरी सीरीज निकलेगी. तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, series of spectral lines obtained when the electron in a hydrogen atom jumps from higher energy orbit jumps from higher energy orbits to a particular higher energy orbits to a particular lower energy orbit. That is called as hydrogen spectrum. Hydrogen spectrum क्या है? It's a series of spectral lines obtained when the electron in a hydrogen atom jumps from higher energy orbit to particular lower energy orbit. हमारे पास बहुत सारे 2, 4, 5 स्पेक्ट्रल सीरीज है. किसमें? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. नंबर 1 is Lyman series. Various types of spectral series is in hydrogen R. Number 1 Lyman series. ये देखो Lyman series जो है ये कब इमिट होती है? When this series is emitted. See, यहां पर मैं बनाऊंगा, this is our nucleus. ये ऐसे है. Suppose this is the first orbit, n is equal to 1 orbit. This is n is equal to 2. This is n is equal to 3. This is n is equal to 4. This is n is equal to 5 orbit. N is equal to 6. N is equal to 7. N is equal to 8. यहाँ लिखेंगे हम. ये n is equal to 1 orbit है. N is equal to 2. N is equal to 3. N is equal to 4. N is equal to 5. N is equal to 6. N is equal to 7. N is equal to 8. देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है, it's a series of spectral lines which are emitted when an electron jumps from higher energy orbits to a particular lower energy orbit. Lyman series कब होती है, कब हमें emit होती है? This series is emitted when the electronic jumps end in first orbit. यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप करेंगे from higher energy orbit to a particular lower energy orbit.
to a higher energy orbit to a n is equal to 1 orbit, यानी when the electronic jumps and in the first orbit, वो स्पेक्ट्रल सीरीज जो हम हासिल करेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक जंप्स जो है वो एंड होंगे किस ऑर्बिट में, n is equal to 1 orbit from higher energy orbits, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेंगे, यहां देखो from second to first orbit, from third to first orbit, from fourth to first orbit, from fifth to first orbit, from sixth to first orbit, seventh to first orbit, eighth to first orbit, so on. इस सीरीज को हम क्या कहते हैं बेटा? कहते हैं लाइमन सीरीज. What is this series called as? This is called as Lyman series. हम ऐसे बोलेंगे. The spectral series obtained when the electron jumps to first orbit. When the electron jumps to first orbit के लिए क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है? 1. यानी इसके लिए जो है, जो आपका n1 है वो है 1. जो n1 है वो क्या है? 1. The spectral series obtained when the electron jumps to first orbit from any of the outer orbits. From any of the outer orbits. यानी जो n1 है वो किसके बराबर है? n1, ठीक है ना? और n2 जो है, n2 है 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश. वो स्पेक्ट्रल सीरीज, जो स्पेक्ट्रल सीरीज हमें हासिल होगी जब इलेक्ट्रॉनिक जंप्स एंड होंगे किस ऑर्बिट में? फर्स्ट ऑर्बिट में. फ्रॉम एनी ऑफ द आउटर ऑर्बिट्स. तो इसका मतलब है जो n1 होगा आपको, n1 इनर n1 वो होगा 1, ठीक है ना? जो n2 होगा वो होगा 2 कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम 2 to 1 फर्स्ट ऑर्बिट, then from 3 to first orbit, then 4 to first orbit, ठीक है ना? ठीक है ना? अब हम इस लाइमन सीरीज का जो है वेव नंबर लिखेंगे. The wavelength for this Lyman, the wave number for this Lyman series will be given by V bar is equal to R into, हमें फार्मूला है 1 by n1 square, ठीक है ना? n1 के बाद क्या लिखेंगे हम? 1. This is 1 by 1 square minus 1 by n2 square. मैं क्यों लिखा n2 square? क्योंकि n2 square को मुख्तलिफ वैल्यू है, n1 का एक ही वैल्यू है, वो क्या है? 1. Wire n2 is equal to 2, 3, 4, 5 dash 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 dash. ठीक है ना? ये है वेव नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू व्हाट सीरीज? लाइमन सीरीज. वो सीरीज, वो स्पेक्ट्रल सीरीज जो आपको हासिल होगी हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉनिक जंप्स एंड होंगे किस ऑर्बिट में? फर्स्ट ऑर्बिट में. n is equal to 1 ऑर्बिट में. यानी व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप, जब आपका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम टू व्हाट ऑर्बिट? n is equal to 1 orbit from any of the outer orbits. Any of the outer orbits means n2 is equal to 2, 3, 4, 5 dash 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 dash. ठीक है ना? Therefore यहां पर मैंने इसका वेव नंबर भी लिखा. वेव नंबर से मैं इसका वेवलेंथ भी लिख सकता हूं. जरा वेवलेंथ क्या होगा? वेवलेंथ होगा 1 by lambda, ठीक है ना? is equal to R into 1 by 1 square minus 1 by n2 square. मैं इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा, फर्स्ट मेंबर कौन होगा इसका? फर्स्ट मेंबर जो इस सीरीज का होगा वो होगा वो वाला जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट. दैट विल बी द फर्स्ट मेंबर ऑफ द लाइमन सीरीज. ठीक. लिमिटिंग मेंबर कौन होगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n is equal to infinity orbit to n is equal to 1 orbit. तो हम इस फार्मूला के जरिए इसके फर्स्ट मेंबर की भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं. इसके किसकी वेवलेंथ? इसका जो लिमिटिंग मेंबर होगा उसकी भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं. जरा फर्स्ट मेंबर का निकालो वेवलेंथ. कैसे निकालोगे? For its first member जो आपका n2 होगा 2. n2 क्या होगा? 2. जरा फर्स्ट मेंबर के लिए वेवलेंथ निकालो. ये होगा 1 by lambda is equal to R into, शाबाश, 1 by 1 square हो गया 1 ही, minus 1 divided by 2 square. ठीक है ना? ये बनेगा 1 by lambda is equal to R into 1 minus 1 by 4. ठीक है ना? जरा निकालो, शाबाश. ये निकलेगा 1 by lambda is equal to R into 4 1 3 by 4. ठीक है ना? ये बनेगा 1 by lambda is equal to 3R divided by 4. जरा लैम्डा निकालो. लैम्डा कितना निकलेगा? शाबाश. लैम्डा निकलेगा आपको, शाबाश, 4 by 3R. आपको R का वैल्यू पता है, आप R का वैल्यू दीजिएगा, ठीक है ना? आपको फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ निकलेगी. ठीक है ना? जरा जो इसका लिमिटिंग मेंबर होगा उसकी वेवलेंथ किसके बराबर होगी? 1 by lambda, ठीक है ना?
इज इक्वल टू आर इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर, ठीक है ना। 1/इंफिनिटी होगा 0, तो आपका 1/लैम्डा निकलेगा बराबर आर, ठीक है ना। तो लैम्डा जो होगा, लैम्डा किसके बराबर निकलेगा आपको 1/r। ये है वेवलेंथ फॉर लिमिटिंग मेंबर, ठीक है ना। जो ये वेवलेंथ है, ये सीरीज है, ये वेवलेंथ है, इट लाइज इन द ultraviolet region of electromagnetic spectrum. जो ये लाइमन सीरीज है, इट लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे 3 हिस्से होते हैं, एक होता है यूवी रीजन, दूसरा होता है विजिबल रीजन, तीसरा होता है इंफ्रारेड रीजन। जो ये लाइमन सीरीज है, इट लाइज इन द यूवी रीजन, लिहाजा ये विजिबल नहीं है। इसके बाद हमारे पास दूसरी सीरीज है, उसको हम कहते हैं क्या, शाबाश, दैट इज कॉल्ड एज अ बाल्मर सीरीज। दैट्स कॉल्ड एज अ बाल्मर सीरीज। तो हम देखेंगे बाल्मर सीरीज में क्या होता है। बाल्मर सीरीज, यहां देखो, बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज है वो स्पेक्ट्रल सीरीज जो हमें हासिल होगी व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक जंप्स एंड इन n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट, यानी जब आपके इलेक्ट्रॉनिक जंप्स जो है वो एंड होंगे सेकंड ऑर्बिट में, या हम ऐसे कह सकते हैं द स्पेक्ट्रल सीरीज इमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट फ्रॉम हायर ऑर्बिट्स या फ्रॉम आउटर ऑर्बिट्स। उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, क्या उसको कहते हैं, बाल्मर सीरीज। तो देखो ना, ये n इज इक्वल टू ऑर्बिट है, यहां से इलेक्ट्रॉनिक जंप्स एंड होंगे। ये है 3 to 1, 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2, 7 to 2, 8 to 2, infinity to 2। तो ये सीरीज जो आपकी आई, ये आई आपकी क्या, बाल्मर सीरीज। तो आपकी जो बाल्मर सीरीज है, इसके लिए जो n1 होगा वो होगा 2, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक जंप्स किस ऑर्बिट में खत्म होते हैं, सेकंड ऑर्बिट को। n1 कितना होगा 2, तो आपका जो n2 होगा 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश। इसमें जो ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज मैंने हासिल की, इसका जो वेव नंबर होगा वो वेव नंबर ऐसे होगा, v बार इज इक्वल टू r इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n2 स्क्वायर, है ना। v बार होगा r इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n2 स्क्वायर। n1 स्क्वायर चूंकि 2 है, n1 जो है वो खाली एक वैल्यू है 2, लेकिन n2 जो है इसके बड़े सारे वैल्यूज होते हैं, है ना, बड़े सारे वैल्यूज। चूंकि ये वो सीरीज है जो हमने हासिल की जब हमारा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से जंप करता है किस ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में। तो उसके लिए जो वेव नंबर होगा वो होगा v बार इज इक्वल टू r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। वेवलेंथ अगर निकालेंगे 1/लैम्डा होगा r इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा वो कब, कौन सा होगा, when there will be a transition from what orbit, 3 to 2। लिमिटिंग मेंबर क्या होगा, when there is a transition from n is equal to infinity orbit to n is equal to 2 orbit, ठीक है ना। ये सीरीज जो है दिस इज बाल्मर सीरीज। इसके बाद तीसरी सीरीज है वो है पास्चन सीरीज। ये सीरीज जो है इट लाइज इन द विजिबल रीजन। जो बाल्मर सीरीज है इसमें जो वेवलेंथ्स हम हासिल करेंगे, दीज वेवलेंथ्स लाई इन व्हाट रीजन, विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके बाद तीसरी सीरीज है वो है पास्चन सीरीज, ठीक है ना। पास्चन सीरीज में आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा टू व्हाट ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट फ्रॉम द आउटर ऑर्बिट्स, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक जंप्स जो है वो एंड होंगे इन द थर्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉनिक जंप्स जो आपके हैं वो एंड होंगे किस ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में। तो ये सीरीज जो है, ये सीरीज है पास्चन सीरीज, यानी वो सीरीज, वो स्पेक्ट्रल सीरीज जो इमिट होगी when the electron jumps to n is equal to 3 orbit from any of the outer orbits। यानी उसके लिए आपका n1 जो होगा वो होगा 3, जो आपका n2 होगा वो होगा 4, 5, 6, 7, 8 डैश डैश डैश। फर्स्ट मेंबर क्या होगा, जब ट्रांजिशन होगी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी फ्रॉम 4 to 3rd orbit। लिमिटिंग मेंबर क्या होगा, when the electron jumps from n is equal to infinity orbit to n is equal to 3rd orbit। इसके लिए वेव नंबर की फार्मूला क्या होगी, v बार इज इक्वल टू r इंटू शाबाश 1/3 स्क्वायर शाबाश माइनस 1/n2 स्क्वायर।
V बार हो गया R इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है ना। ये किसके लिए वेव नंबर है? शाबाश, किस सीरीज के लिए? पार्शियल सीरीज के लिए। ये सीरीज जो है इट लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन। जब हम इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, दैट वेवलेंथ विल बी लाइंग इन व्हाट रीजन? इंफ्रारेड रीजन ऑफ EM स्पेक्ट्रम, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आगे जाएंगे, इसके बाद आपको पता है एक और सीरीज है, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रैकेट सीरीज। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ब्रैकेट सीरीज। यहां देखो, ब्रैकेट सीरीज कब इमिट होती है? यहां देखो, जब इलेक्ट्रॉनिक जंप्स एंड होते हैं किस ऑर्बिट में? n इज इक्वल टू 4 ऑर्बिट में। यानी जब आपका इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो n इज इक्वल टू 4 ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 4 ऑर्बिट फ्रॉम एनी ऑफ द आउटर ऑर्बिट्स, फ्रॉम एनी ऑफ द आउटर ऑर्बिट्स। ऐसे जो है तो ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप्स यहां एंड होंगे। शाबाश, फ्रॉम 5 to 4, फ्रॉम 5 to 4, उसके बाद होगा फ्रॉम 6 to 4, उसके बाद होगा फ्रॉम 7 to 4, उसके बाद होगा फ्रॉम 8 to 4, 9 to 4, 10 to 4, infinity to 4। ये सीरीज जो है, व्हाट इज दिस सीरीज? दिस इज अ ब्रैकेट सीरीज। उसके बाद आपकी फंड सीरीज है। फंड सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक जंप्स किस ऑर्बिट में एंड होते हैं? n इज इक्वल टू 5th ऑर्बिट में। तो ये होगी फंड सीरीज। 6 to 5 इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, 7 to 5, 8 to 5, so on। ये है फंड सीरीज, ये है फंड सीरीज। तो आपने ध्यान देखा, ब्रैकेट सीरीज के लिए, ब्रैकेट सीरीज जो है वो कब इमिट होगी? व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स टू व्हाट? टू n इज इक्वल टू, शाबाश, n इज इक्वल टू व्हाट? 4, n इज इक्वल टू 4 ऑर्बिट फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट्स। तो उसके लिए बच्चों जो आपका n1 होगा, जो आपका n1 होगा वो होगा 4, n2 जो होगा वो होगा 5, 6, 7, 8 डैश डैश, ठीक है ना। उसके लिए जो वेव नंबर होगा V बार वो होगा R, ठीक है ना, इंटू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये कौन सी सीरीज है? ये है ब्रैकेट सीरीज। ये ब्रैकेट सीरीज जो है ये भी लाई करती है, ये भी लाई करती है इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये है ब्रैकेट सीरीज के लिए। दिस इज फॉर ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। उसके बाद आपके पास फंड सीरीज है, फंड सीरीज है। फंड सीरीज कब इमिट होती है? व्हेन इलेक्ट्रॉनिक जंप्स एंड इन n इज इक्वल टू 5 ऑर्बिट, ठीक है ना। तो फंड सीरीज के लिए n1 जो है वो है 5, n2 जो है वो है 6, 7, 8 डैश डैश डैश, ठीक है ना। तो उसका वेव नंबर अगर निकालेंगे ये होगा V बार इज इक्वल टू R, शाबाश, इंटू 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। In this way we can also calculate the wavelengths of the first and the infinite member, ठीक है ना, and the limiting member, ठीक है ना। तो ये सीरीज जो है, ये सीरीज, this also lies in infrared region of hydrogen spectrum। ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम, इस डायग्राम को हम कहते हैं कोसेल्स डायग्राम, KOSSEL, कोसेल्स डायग्राम। What is this diagram called? Kosel's diagram, Kosel's diagram। This completes this question।